میں صبح سویرے ہسپتال میں کھڑا تھا اور میرے سامنے پڑا وجود زخموں سے چور تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جس پر زخم نہ دیا گیا ہو، بڑی ہی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد جب بستر پر پڑے وجود کو ہوش آیا تو اس کی دل دوز چیخوں سے سارا ہسپتال گونجنے لگا۔ میں نے اپنے دونوں کانوں پر گھبرا کر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھ میں یہ چیخیں سننے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میرا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ان چیخوں کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے۔ یہ سچ صرف مجھے ہی معلوم تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ میرا نام طلحہ ہے اور یہ آج سے 3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں خوب بن سنور کر پڑھانے کے لیے رشنا کے گھر پہنچا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی اور میری نظریں اس کے چاندنی کی طرح دمکتے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ 15 سال کی عمر میں ہی وہ آتش فشاں جیسی تھی۔ میں چاہ کر بھی اس سے نظر نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ پوری طرح کتاب میں محو تھی، اسے تو اپنے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی جو میں نے اسے ڈھونڈنے کو کہا تھا، لیکن میری نظر تو کچھ اور ہی تلاش کر رہی تھی۔ میں بس اپنی نظروں سے اس کے وجود کو تسخیر کر لینا چاہتا تھا۔ جب مجھ سے اپنے جذبات پر قابو نہ ہو سکا تو میں نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے فوراً میری طرف دیکھا تو میں نے مسکرا کر ایسے ظاہر کیا جیسا میں اسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آس نے اپنے کاندھے سے میرا ہاتھ تو نہ ہٹایا تھا، مگر وہ کچھ جھیمپ رہی تھی۔ مجھے اس گھر اتے 4 مہینے ہوئے تھے اور ان 4 مہینوں میں یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اس کے اتنا قریب ہوا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے ایک چور نظر ادھر ادھر ڈالی، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رشنا میرے پاس ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھتی تھی اور اس کی ماں اس وقت باورچی خانے میں ہوتی تھی۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں تھوڑا اور رشنا کے قریب ہوا اور جھک کر اسے سوال سمجھانے لگا۔ مجھے اپنے اتنا قریب پا کر وہ کچھ لمحے کو جھجکی اور تھوڑا سا پیچھے ہٹی۔ میں نے ایک نرم سے مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور ایسے ظاہر کیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اس عمر کی لڑکیاں بہت جلدی محبت جیسے جذبات کا شکار ہوتی ہیں۔ میں اس بات سے پوری طرح واقف تھا اور مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں محبت کا پتہ پھینکوں گا تو بہت جلد اپنا مقصد حاصل کر سکوں گا۔ میں نے بہت دھیرے لہجے میں رشنا سے مسکرا کر کہا کہ دیکھو رشنا، اگر اچھے نمبر لانا چاہتی ہو تو تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ میں تمہیں کلاس کی ساری لڑکیوں سے آگے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی کمزوری پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے اچھا رزلٹ لانے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میری بات سن کر وہ فورا سر ہلانے لگی۔ میں نے آہستہ سے اس کے کان میں ایک بات کہی اور اسے سمجھایا کہ اگر وہ میری بات مانے گی تو بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگی۔ پہلے تو میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، لیکن جب بات اس کے رزلٹ پر آئی تو وہ دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے سر، میں پوری کوشش کروں گی کہ جو اب کہہ رہے ہیں ویسا ہی کروں، لیکن رات کے وقت یہ کیسے ممکن ہوگا یہ میں نہیں جانتی۔ دیکھو رشنا، اگر تمہیں اچھے نمبر لانے ہیں تو پھر ہمت تو کرنی ہوگی۔ میں تو تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن تم ہی ہو جو پیچھے ہٹ رہی ہو۔ اگر تم چاہو تو سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ فورا ہی کہنے لگی، نہیں سر، میں پیچھے نہیں ہٹ رہی ہوں، بس اماں کا سوچ کر ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اماں کو پتہ چلا کہ میں نے رات کو اماں سے چھپ کر آپ کے ساتھ، تو اماں بہت غصہ کریں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی اور غصے میں اس سے کہا کہ تم یا تو اماں کے غصے کا سوچ لو یا پھر میری بات مان لو۔
तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर आतबार नहीं। मेरे उस तरह हाथ पकड़ने पर वो कुछ चौंकी, लेकिन फिर अपने हाथ में पकड़ी किताब देखने लगी। शायद वो मेरे गुस्से से डर गई थी। मैं किसी शातिर शिकारी की तरह आहिस्ता आहिस्ता उसका शिकार कर रहा था। वो मेरे जाल में फंसती ही चली जा रही थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद उसके करीब होता या उससे कोई बात करता, उसकी उमा चाय की ट्रे लेकर कमरे में चली आई और कहने लगी, बेटा, रशना को बहुत मेहनत से पढ़ाना। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी काबिल बन जाए। मैंने फ़ौरा उन्हें तसल्ली दिलाई, इंटी अब फ़िक्र न करें, रशना बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होगी। बस मैं चाहता हूँ कि जब मैं उसे पढ़ाया करूँ तो ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस ना हो, और अब भी रशना को समझाएं कि ये मेरी हर बात माना करे। आंटी फ़ौरा कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तो खुद उसे समझाती हूँ कि ये तुम्हारी इज्जत करे और जो तुम कहो इस पर फ़ौरा अमल करे। मैं भी बस चाय देने के लिए आई थी, अब मैं छत पर जा रही हूँ, तुम सुकून से ऐसे पढ़ा लो। यह कहकर आंटी ने रशना को मेरे हवाले छोड़ा और ख़ुद छत पर चली गईं। वो अपनी जवान होती बेटी के मामले में मुझ पर उंधा आतबार करती थीं, और यही बात मेरी समझ से बाहर थी कि वो कैसे अपनी जवान बेटी को मेरे हवाले छोड़ सकती थीं। मैं उनके लिए एक बिल्कुल अनजान नामहरम मर्द था, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों मुझ पर उस कदर भरोसा था। इंटी मुझे रशना के पास छोड़कर जा चुकी थीं। पढ़ाना किया था, मैं पढ़ाने के बहाने बार बार रशना के करीब होता रहा। कभी उसके कंधे पर हाथ रख देता तो कभी उसके हाथ को पकड़ लेता। कभी वो चौंक जाती तो कभी उसे महसूस भी ना होता। मैं बस 1 घंटे के लिए ही उसे पढ़ाने उता था, और ये 1 घंटा मेरे सारे दिन की थकेन उतार दिया करता था। मुझे अब इस दिन का इंतज़ार था जब रशना खुद किसी पके आम की तरह मेरी झूली में आ गिरती, और ये वक्त ज़्यादा दूर नहीं था। 1 घंटे बाद मैं रशना के घर से निकल गया। मेरे चेहरे पर एक परस्कुन मुस्कुराहट थी। मैंने कई बार उसके वजूद को छुआ था। वो किसी खुलती हुई गुलाब की कली की तरह थी, और मैं उसकी खुशबू से मसरूर हो रहा था। आसबात ने मेरे अंदर की आग को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। मुझे यकीन था कि बहुत जल्द मैं अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाऊंगा। न ही कोई मुझ पर नज़र रखने वाला था और न ही सवाल जवाब करने वाला। रशना की माँ सीधी सादी औरत थी और वालिद दबी में थे। वो दोनों माँ बेटी अकेली रहती थीं। इसकी माँ ने मुझे ट्यूटर के तौर पर लगाया था। आन की किसी सहेली ने उन्हें मेरे बारे में बताया था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैं भी चला, या मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ आकर रशना को देखने के बाद तो मेरी नीयत में ही खोट आ गया था, और सबसे बढ़कर तो ये कि उसके और मेरे दरमियान कोई रुकावट हायल नहीं थी। हम दोनों पूरे 1 घंटे तक कमरे में तन्हा होते, और उसी तन्हाई ने मेरे दिल में आग लगा दी थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखती रशना को देखने के बाद मेरा दिल धड़कना भूल जाया करता। मैं 30 साल का होने वाला था, लेकिन मेरी शादी का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। शायद यही वजह थी कि मेरा दिल खुद बखुद ही रशना की तरफ हमकने लगा था। मेरे अब्बा ने तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि जब तक बड़ी बहनों की शादी नहीं होगी, मेरी शादी के बारे में भी नहीं सोचा जाएगा, और मेरी बड़ी बहनें दोनों ही 40 के करीब होने वाली थी। घर के हालात की वजह से उनके रिश्ते नहीं हुए थे, और कुछ अब्बा की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि चाहकर भी अम्मा बहनों की शादी नहीं करवा पाई थीं, और उसका नुकसान न सिर्फ मेरी बहनों को उठाना पड़ा था, बल्कि मुझे भी भुगतना पड़ रहा था। मैं 30 साल का हो रहा था,
लेकिन घर में मेरी शादी का कोई जिक्र नहीं था। मेरे दिल में जज्बात का एक तूफान था और मैं अपनी बूढ़ी होती बहनों की वजह से खामोश था। अबा की पेंशन और मेरी नौकरी की पैसों से बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। उसी लिए मैंने पार्ट टाइम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए थे ताकि घर का खर्च हो सके और बहनों के जहीज़ की भी कुछ तैयारी हो जाए। लेकिन फिर भी न ही बहनों की शादी हो रही थी और न ही हालात कुछ बेहतर हो रहे को न थे। मैं एक जवान मर्द था, मेरे कुछ फितरी तकाज़े थे। मैं हर रात बिस्तर पर करोटें बदलते गुजार देता और हर दिन मेरे अंदर यही ख्वाहिश जन्म लेती कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हो जो मेरे जज्बात की आग को बुझा सके। ऐसे में रशना मेरी ज़िंदगी में ताज़ा हुआ का झोंका बनकर आई और मेरे लिए ज़िंदगी कुछ खुशगवार हो गई। लेकिन रशना बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी लड़की थी। वह बहुत ही खुद को ढांक के छिपा कर रखती। मैं उसके करीब होने की कोशिश करता तो वो कुतरा जाती और यही वजह थी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत से उसे अपनी तरफ माइल कर रहा था। और जो बात मैंने उसे कान में कही थी, मुझे इंतज़ार था कि अगर वो उस पर अमल करती तो मेरे लिए अपना मकसद हासिल करना और भी आसान हो जाता। और फिर अगले ही दिन उसने हैरत अंगीज़ तौर पर मेरी बात मान ली थी। रात के 2 बजे के करीब मेरा मोबाइल फ़ोन बजा और रशना की माँ का नंबर देखते ही मैं समझ गया कि मेरा वार खाली नहीं गया है। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरे तरफ रशना थी। वो कुछ डरी हुई थी और कह रही थी कि उसे एक सवाल समझ नहीं आ रहा है, वो वही सवाल पूछना चाहती है। मैंने उसे वीडियो कॉल पर बुला लिया था। मेरे कहने पर वो वीडियो कॉल पर भी आ गई थी। रात की तन्हाई में उसे काबू करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यही सोचकर मैंने उससे कहा था कि उसे रात को भी पढ़ना होगा और जो कुछ समझ ना आए वो मुझे फ़ोन करके पूछ सकती है। पहले तो वो झिझकी और कहने लगी कि मोबाइल फ़ोन तो उसकी उमा का है और उमा रात को उसे फ़ोन नहीं लेने देती। मगर जब मैंने दबाव डाला कि ऊंचे नंबरों के लिए उसे मेरी बात माननी होगी तो वो मान गई और रात 2 बजे उसने मुझे फ़ोन कर ही लिया। उसने मुझसे एक सवाल पूछा था। मैंने झटपट उसे इस सवाल समझाया और उसके बाद यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर दें। मैं उससे उसकी उम्र के हिसाब से ही सवाल कर रहा था और वो भी खुशी खुशी जवाब दे रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे सवालों की रो बदलती चली गई। मैं पटूरी से उतरने लगा और कुछ बेहजाबाना सवाल पूछ लिए। वो एकदम ही खामोश हो गई, जैसे घबरा रही हो। मैंने फ़ौरा उसे प्यार से पचकारा और कहा, रशना मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मुझसे कैसा शर्माना। एक मैं ही तो तुम्हारा दोस्त हूँ, वरना तुम्हारी उमा तो तुम्हें किसी से बात भी नहीं करने देती। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे कह दिया करो। मुझे मालूम था कि उसकी माँ ने उसे दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं दी है। वो स्कूल से सीधे घर उठती और फिर सारा वक्त घर पर ही रहती। उन्होंने तो उसे घर से बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं दी थी। उसी लिए मुझे ट्यूटर रख लिया था। पहले तो वो कुछ शर्माई लजाई और फिर मेरे बार बार इसरार करने पर मेरी बातों का जवाब देती चली गई। वो अभी कुछ ही उम्र में थी और सही और गलत से इस कदर वाकिफ़ नहीं थी जितना कि मैं, लेकिन मेरे अंदर का शैतान तो खुश हो रहा था। मैं जान गया था कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब उन बेहजाबाना बातों से बेहयाई का सफ़र शुरू होगा। इसके बाद ये सिलसिला चलता ही चला गया। वो हर रात ही किसी न किसी सवाल के लिए मुझे फ़ोन करती हो। थोड़ी ही देर बाद पढ़ाई से हटकर दूसरी तरफ निकल जाता। कुछ दिन तो वो घबराती रही थी, लेकिन अब वो भी उन सब बातों की आदी हो रही थी। जब मैं उसे पढ़ाने जाता तो बड़ी बेबाकी से उसके कंधे पर हाथ रख देता। अब उसने पहले जैसी हिया नहीं रही थी। अब तो मैं उसकी कमर तक को छू लिया करता था और वो कुछ न कहती थी।
ایک دن میں اسے پڑھانے کے لیے گیا تو اس کی اماں کہنے لگی، بیٹا مجھے بازار جانا ہے، تم رشنا کو اکیلا نہ چھوڑنا، اسے پڑھانے کے بعد بھی کچھ دیر اور بیٹھ جانا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اتنا آسان موقع مل رہا تھا، میں کیسے چونکتا۔ میں نے فورا کہا، آنٹی آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں بھی فارغ ہوں، رشنا کو بھی زیادہ پڑھانا ہے، امتحان قریب ہے، میں دیکھ لوں گا۔ انٹی کو گئے 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے، میں نے ساری کتابیں بند کر دیں۔ رشنا حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ پڑھائی تو روز ہی ہوتی ہے، آج کچھ کھیل ہو جائے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی، بتائیں کیا کھیلنا ہے؟ میں نے فورا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اب مجھ سے چھڑوا کر دکھائے۔ کچھ دیر وہ کلائی پر زور آزمائی کرتی رہی اور پھر پریشان ہو کر کہنے لگی، میں کیسے چھڑواؤں، اب کی گرفت تو بہت ہی مضبوط ہے۔ میں نے فورا ہی کہا، ہاں، اور میں یہ گرفت زندگی بھر مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم نہیں کرتی؟ لفظ محبت پر اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اتنی راتوں کا اثر آج اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں فورا خمار آلود لہجے میں اس سے اپنے عشق کو بیان کرنے لگا، وہ کھوکھلا عشق جس کا مقصد صرف اور صرف اس کی ذات کا حصول تھا، اور وہ معصوم میری باتوں میں الجھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ بے باکی کی تمام حدیں پار کی اور بے حیائی پر اتریا۔ شروع میں تو اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر اپنی عمر کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ آس عمر میں خود پر قابو پانا اور ایک مرد کی محبت کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے 1 گھنٹے تک اسے اپنی ہوش کا نشانہ بنائے رکھا اور وہ بھی بخوشی میرے آگے ہارتی چلی گئی۔ جب میرا مقصد پورا ہوا تو میں اسے چھوڑ کر ہٹا اور اسے کہا کہ یہ عبادت اپنی اماں کو ہرگز نہ بتانا، بہت جلد میں تمہارے لیے رشتہ بھیجوں گا۔ یہ ایک ایسا خوبصورت خواب تھا جو میں نے اس کی آنکھوں میں سجا دیا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ شادی کی بات پر وہ شرم آ گئی تھی۔ میں نے 15 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کی خوبصورتی، اس کا کنوارا پن، سب کچھ چھین لیا تھا، اور یہ سب اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں اپنے جذباتوں، اپنے گھر کے حالات سے مجبور تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کو کچھ نہیں بتائے گی، اور اسی لیے جب اس کی ماں بازار سے گھر لوٹتی تو میں واپس چلا آیا۔ اس کی ماں تو میری بڑی شکر گزار تھی کہ میں اس کے خیر موجودگی میں اس کی بیٹی کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امتحانات میں صرف 2 مہینے باقی رہ گئے تھے۔ رشنا بہت محنت سے پڑھائی کر رہی تھی۔ اس کے والد بھی کچھ دن کی چھٹیوں پر ہونے والے تھے۔ میرا مقصد بھی پورا ہو چکا تھا، اور اب بھی میں اکثر ہی اپنے جذبات کو کسی نہ کسی بہانے تسکین پہنچا لیا کرتا تھا۔ میرے اور کے تعلق کو مہینہ ہی گزرا تھا کہ اچانک ہی اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اور پھر 4 دن بعد جب اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی تو اس کی اماں نے مجھے 2 دن کی چھٹی دے دی، اور جب 2 دن بعد میں ان کے گھر پہنچا تو اس کی ماں نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور میرے منھا پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ ان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں باہر سے آئی ہیں اور زیادہ دیر نہیں گزری۔ میں ہکا بکا ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور پھر انہوں نے مجھ پر آسمان گرا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ابھی ہسپتال سے روشنی کی رپورٹ لے کر آ رہی ہیں۔ رشنا امید سے ہے، اسے حمل ٹھہر چکا ہے، اور وہ جان گئی ہیں کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے۔ رشنا کے حاملہ ہونے کی خبر نے تو مجھ پر قیامت ڈھا دی تھی۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا۔ رشنا کی ماں روتے روتے میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میری ماں بہنوں کو بد دعائیں دینے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری معصوم بچی کا کیا قصور تھا، میں نے تو
तुम पर भरोसा किया, तुम्हें अपने घर में जगह दी और तुमने मेरी ही पीठ पर वार कर दिया। मेरा शौहर सालों से इसलिए परदेश में है ताकि हम रशना का मुस्तकबल संवार सके, और तुमने मेरी उसी बच्ची को तारीकियों में धकेल दिया। उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। रशना की तबीयत भी बहुत बगड़ी हुई थी। मेरी वक्ती ख्वाहिशों ने एक मासूम लड़की का मुस्तकबल तबाह कर दिया था। मैंने उसकी ज़िंदगी के साथ खेल खेला था। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने रशना की माँ को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो मेरा ही गरिबान पकड़कर मुझे मारने पीटने लगी। उन्होंने मुझे बद्दुआएं देते अपने घर से निकाल दिया था। वो कहने लगी कि तुम्हारा हिसाब खुदा करेगा। मैं तुम्हें पुलिस में भी नहीं डलवा सकती कि बदनामी मेरी बच्ची की होगी। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हें खुदा की अदालत में खड़ा होना होगा और वहाँ तुम अपनी इस बेहयाई का जवाब देना। मैं हारे हुए कदमों से बाहर निकल आया था। मैं 2 बहनों का भाई था। मुझे एहसास था कि मैं क्या कर चुका हूँ और मेरा ज़मीर उसीलिए मुझे कुचोके लगा रहा था। मुझे ये खौफ सता रहा था कि कहीं उनकी की बदाएं कबूल न हो जाएं। बहुत मुश्किल से मैं गुरते पड़ते अपने घर पहुंचा तो मेरे घर में कुछ मेहमान बैठे हुए थे। मेरी बड़ी बहन का रिश्ता अय्या था। उमा अब्बा बहुत खुश थे। लड़का बहुत अच्छा था, घर बार भी सही था। अब्बा ने फ़ौरा रिश्ता पका कर दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी का समा बंधा तो कुछ ही दिनों में मैं इस गलती को भूल गया जो मैं एक मजलूम लड़की के साथ कर चुका था। मेरी बहन की रुखसती का दिन आया। वो रुखसत होकर चली गई और घर में सकूत छा गया तो मुझे रशना का ख्याल आया। वो रात मैंने बेचैनी में गुजारी। न उसकी माँ ने मुझे कोई फ़ोन किया, न रशना ने कोई राबता रखा। कई बार मैं उनके घर के सामने से गुजरा, मगर हिम्मत न हुई कि दरवाज़ा खटखटा कर अपने कसूर की माफ़ी मांगूं। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। मैंने सोचा कि रशना के घर जाऊंगा, मगर इससे पहले ही मेरी बहन सुबह सवेरे वापस आ गई और आते ही दरवाजे पर बेहोश हो गई। इसकी हालत देखकर सबके होश उड़ गए। जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी, इसका मजाज और रवैया शदीद तौर पर गैर मतवाज़न था और उसने उसके साथ ऐसा सलूक किया कि वो सदमे में आ गई। अबा ने इन लोगों का पैसा देखकर ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की थी और यही गलती साबित हुई। बाद में मालूम हुआ कि इस शख्स की पहले भी 2 शादियां ख़त्म हो चुकी थीं और वो बदसलूकी का आदी था। मेरी बहन की हालत ऐसी नहीं थी कि हम दोबारा उसे उसके साथ भेजते। अब्बा ने सख्ती से बात करके तलाक ले ली और मेरी बहन एक बार फिर हमारी दहलीज पर वापस आ बैठी। जब भी मैं उसकी उजड़ी हालत देखता तो मुझे रशना की माँ की बद्दुआएं याद आते। जल्द ही रशना के घर की खबरें सुनने को मिलें। मोहल्ले वालों ने बताया कि उसकी हालत भी बगड़ गई थी। लोग बातें बनाने लगे थे और वो शदीद ज़हनी दबाव में आ गई। फिर एक दिन अचानक इसकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म हो गया। अकलौती बेटी के जाने पर उसकी माँ सदमे में चली गई। बाप भी वापस आकर घर बीच कर कहीं और चला गया। ये सब सुनकर मेरा दिल दहल गया। एक गलती ने पूरा घर बर्बाद कर दिया था। न सिर्फ एक मासूम लड़की का मुस्तकबल ख़त्म हो गया, बल्कि उसके वालिदैन भी टूट गए। पहली बार मुझे लगा कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। न मैं माफ़ी मांग सका, न अपने लिए आखिरत का कोई सहारा बचा सका। घर लौटा तो मेरी बहन की चीखें सुनाई दें। वो मदद के लिए पुकार रही थी। मैंने कान बंद कर लिए। ये मुकाफ़ाती अमल था जो मेरे दरवाज़े पर आ चुका था।
मेरी जिंदगी बोझ बन गई। मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश रशना की माँ मुझ पर अंधा एतमाद न करती। काश मेरा बाप रिश्तों में ज़रूरत से ज़्यादा शर्तें न रखता, और काश मैं गलत सोहबत और गलत इस्तेमाल वाले रास्तों में न पड़ता। आजकल होम ट्यूटर्स और मेल टीचर्स का रुझान बढ़ गया है। लोग अपनी जवान बेटियों को पढ़ाने के लिए ऐसे लड़कों का इंतखाब करते हैं जो गैर शादी शुदा और जज्बात में कमज़ोर होते हैं। तन्हाई का मौका मिले तो बुरा काम होने में देर नहीं लगती। माँ बाप इस खतरे को समझ नहीं रहे, और यही वजह है कि माशरे में बिगाड़ बढ़ रहा है। अक्सर खबरें सुनने में आती हैं कि किसी मेल टीचर ने किसी तालबा को नुकसान पहुंचाया। अगर कसूर किसी का है तो उसमें माँ बाप की भी लापरवाही शामिल है, जिन्होंने बेटी के लिए महफूज इंतज़ाम न किया। मैं खुद को बेकसूर नहीं कहता, मैं मुजरिम हूँ और सज़ा भगत रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप होश के नाखुन लें, अपनी बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत खुद करें, ताकि कोई और रशना जैसा इंजाम न देखे।